नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना देश के उबलते क्रोध को न्याय दिलाने में जुट गई है। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में आ चुकी हैं और बड़े एक्शन से पहले उत्तर भारत के एक इलाके को, यानी जो एयर स्पेस है इस इलाके का, उसको बंद कर दिया गया है और आतंक के गढ़ पीओके के एक आतंकी लॉन्च पैड की पूरी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना को मिल चुकी है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों के घरों को सुरक्षा बल बम से उड़ा रहे हैं। शोपिया, कुलगाम, पुलवामा में आतंकियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मुनीर और शहबाज शरीफ के पांव कांपने लगे हैं, हाथ पैर फूलने लगे हैं। पूरे पाकिस्तान में खौफ का आलम है और डर लाजमी भी है, क्योंकि पीओके में आतंकियों का आका पाकिस्तान की सेना है और इसीलिए भारत इस बार सीधे आतंक के रावण को भस्म करने की तैयारी में जुट चुका है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हिंदुस्तान का इंतकाम कैसा होता है, उसका ट्रेलर पाकिस्तान 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा हमले के बाद देख चुका है।
2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, तो 2019 में पीओके के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर भारत ने सैकड़ों आतंकी को जिंदा दफन कर दिया। माना जा रहा है इस बार का हमला पिछले दोनों स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा होगा। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है, लेकिन बौखलाहट में उन्होंने एक तरफ पहलगाम हमले की जांच में सहयोग देने की बात की है, तो दूसरी ओर भारत को गिदड़ भभकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। Recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security of our beloved Pakistan. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काकुल स्थित मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने भारत के सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर कहा कि पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और पाकिस्तान के जल के प्रवाह को रोकने, कम करने या मोड़ने के किसी भी प्रयास का पूरी ताकत और शक्ति से जवाब दिया जाएगा। साथ ही अपने बयान में मुनीर की तरह ही शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित देश बताते हुए दावा किया कि आतंकवाद से पाकिस्तान को 90,000 से ज्यादा जानें और 6,000 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उनके देश को हुआ है। The nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. Let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. Ladies and gentlemen, India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity, and security. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें एक सिंधु जल समझौता भी है। भारत की तरफ से अब सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिससे पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। सखर में सिंधु नदी के किनारे एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गीदड़ भभकी दी और कहा कि सिंधु दरिया पाकिस्तान का है और या तो उसमें अब पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के
ये मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु जल समझौते को रद्द करना पाकिस्तान पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पहले से ही एक एक रोटी के लिए जंग लड़ रहा पाकिस्तान इसकी वजह से प्यासा मर जाएगा और पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट भी हो जाएगा, जिसे सोचकर ही पाकिस्तानियों की नींद और चैन दोनों गायब हो चुकी है। मुनीर से लेकर शहबाज तक हर कोई सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को युद्ध के बराबर बता रहा है। वो दुनिया भर के देशों के सामने भारत को मनाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। उल्टे ट्रंप से लेकर पुतिन और नेतन्याहू तक दुनिया का हर बड़ा देश आतंक के खिलाफ युद्ध में भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान इसे अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत को पूरे समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में भारत का समर्थन करने का आश्वासन दिया। वैसे भारत खुद इतना ताकतवर है कि आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उसे किसी भी देश की मदद की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 3 विकल्पों पर चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पीओके में स्पेशल ऑपरेशन। दूसरा, पीओके में 700 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला, जिसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से प्रहार किया जा सकता है। और तीसरा, मोसाद की तरह एक एक आतंकी का सीक्रेट तरीके से खात्मा। अब भारत कैसे अटैक करेगा ये कुछ दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन यह तय है कि इस बार पीएम मोदी के प्रतिशोध से ना तो पाकिस्तान में कोई आतंकी बचने वाला है और ना ही इन दहशतगर्दों को पालने वाला। जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक हर किसी ने यह साफ कर दिया है कि आतंकिस्तान का अंत अब बिल्कुल तय है, बिल्कुल नजदीक है। देखिए हिंदी खबर की ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने यूपी को अराजकता और माफियाओं से मुक्त किया, देश की अग्रणी व्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए संकल्प को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोहराया।
उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। पुणे के डगड़ू शेठ गणपति मंदिर में पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे और बहुत जल्द आतंकी और उनके आकाओं को भारत का जवाब मिल जाएगा। बहुत ही दुखदायी अमानवीय घटना घटने पर सारा देश उद्वेलित भी है, दुखी भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कल्पना से ज्यादा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईश्वर उन्हें शक्ति देंगे और निश्चित रूप से इस उद्वेलित अवस्था में जो आशा देश ने प्रधानमंत्री से रखी है उसको हम पूरा करेंगे और ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के बयानों के आधार पर 3 विकल्पों पर चर्चा तेज है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पीओके में स्पेशल ऑपरेशन, जिसे 7 से 10 दिन में पूरा करने का अनुमान है। दूसरा, पीओके में 700 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला, जो पिछले सर्जिकल एयर स्ट्राइक से कई गुना बड़ा होगा और इसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से प्रहार किया जा सकता है। जबकि तीसरा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदाज में पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों का सीक्रेट तरीके से सफाया। फिलहाल भारत का आने वाले दिनों में क्या एक्शन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, इसकी पूरी पड़ताल भारतीय खुफिया एजेंसी ने कर ली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में इस वक्त आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग कैंप हैं और पीओके के अलग अलग इलाकों में 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की एसएसजी टीम ने आतंकियों को पहलगाम हमले की ट्रेनिंग दी। ये इलाके दुर्गम हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम के निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया। सुरक्षा एजेंसियों को पाक सेना के मिलीभगत के सबूत मिले हैं। पाक सेना कई दिन से इसकी तैयारियों में जुटी थी। हिंदी खबर ने भी आपको दिखाया है कि कैसे पहलगाम हमले से ठीक 5 दिन पहले पीओके के रावलकोट में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हमास के आतंकियों का सम्मेलन हुआ। इसमें जैश चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना को आतंकियों के लॉन्च पैड के साथ ही खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि पहलगाम अटैक के ठीक बाद हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ अब ये कहने लगा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है। जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारे फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया, ये आईएसआई के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आईएसआई ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो डीजी आईएसआई कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर डीजी आईएसआई ने ये आदेश दिया है तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके डीजी आईएसआई मुनीर, ये तीनों लोग शामिल हैं और इनको सजा लगाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले हमला होता है, फिर टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी लेता है, इसके बाद भारत कड़े और दमदार फैसले लेता है। पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को मिलता है। जब पाकिस्तान अकेला पड़ने लगता है तो वो बयान देना शुरू करता है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है।
मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने लश्कर को निर्देश दिया कि वो पहलगाम हमले को लेकर बयान जारी करे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बयान से पलट जाए। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, जिसका इस्तेमाल लश्कर अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए करता है। ये साजिश सीमा पार से रची जाती है और खून से लाल होती है घाटी, सुलगता है धरती का स्वर्ग और दम तोड़ती है इंसानियत। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों की गर्दन तोड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हेवी आर्टिलरी, सर्विलेंस और रडार सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी रूट पर सर्विलेंस और मजबूत किया गया है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए भी स्पेशल फोर्स की टीम तैयार है। राष्ट्रीय राइफल्स की अतिरिक्त टीमों को आतंक विरोधी अभियान में लगाया गया है और सेना को खुली छूट दे दी गई है। कश्मीर में भी 130 विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सेना के 25 से ज्यादा ऑपरेशन जारी हैं। भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है। ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां जहां पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है और इनको जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना, और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और जे&के पुलिस मिलकर करेंगे। इंडियन नेवी ने समंदर से पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। नौसेना ने समंदर में 5 युद्धपोत के साथ सोशल मीडिया में एक फोटो शेयर किया और कहा, एकता में ताकत होती है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार और तत्पर हैं। वीडियो में पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए लिखा कि भारतीय सेना के लिए कोई मिशन बहुत दूर नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में सक्रिय आतंकवादियों के घरों को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही सरहद पार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने की दिल्ली से लेकर कश्मीर तक तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार हिंद के निशाने पर सिर्फ आतंकियों के लॉन्च पैड नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सुधरना होता तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सुधर चुका होता। पीओके के आतंकियों का आका पाकिस्तान की सेना है। इस बार सीधे आतंक के रावण को भस्म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। पंजाब से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी